Namaskar, friends. Welcome to the Unplugged Sessions by Arab Skills. My name is Kusum Kanwar, and I'm the founder and CEO of Arab Skills. The Unplugged Sessions under Arab Skills is a community of like minded people who like to spread awareness and educating about the usually unspoken topics. However, everyone's minds are always revolving around it. So at Arab Skills, we are supporting and implementing the skills required to build the five social emotional competencies through our training programs for all school stakeholders. So we create something that has a positive and lasting impact. We believe if we are to see a systematic change in the world, then we need to change mindsets, and that can happen only with repeated conversations, communications, and relentless building of social emotional competencies in children and young adults, who then connect, communicate, and care for us and people around them. Unplugged Sessions is curated to discuss diverse topics which are on everyone's mind, but we have not had conversations around it on platforms to reach out to you who needs this information and also to bring us closer to a mindset change. This is our fifth session under the psychological impact, and we are pleased to have such teachers as our invisible warriors, parent community, mainstream schools, and have rolled out our first session on sexuality education with Ms. Savita Saplial. Today, again, in continuation, we are discussing strategies specifically concerning our children and young adults with disabilities. So, our very special guest, Ms. Savita Saplial, behavior strategist from my hometown, Dehradun, Uttarakhand, is here with us. Let me again recap Savita's very long association and experience of over 25 years working for education and rights of children and adults with various disabilities, especially for the mentally challenged children. So, our very special guest, Ms. Savita Kaplial, behavior strategist from my hometown, Dehradun, Uttarakhand, is here with us again. Let me again recap Savita's very long association and experience of over 25 years working for education and rights of children and adults with various disabilities, especially for the mentally challenged children. She is a specialist in behavior management strategies, particularly adolescents and adult sexuality rehabilitation, counseling, management, and education. Savita's experience with Latika Roy Foundation Dehradun includes many services, especially being the project head for the College of Vocational Training, providing counseling for trainees, parents, and college staff. Her association with the Asra Trust is immense, an organization for the unprivileged children and adults includes counseling and guiding young adults on issues of physical growth and its impact on their behavior. She calls herself an independent consultant and is willing to help anyone who approaches her. We are so happy and proud to have her on a platform of unplugged sessions. Today's session, Savita will be giving it in Hindi, that is, because of the demand of people, so we are taking this session in Hindi. So, greetings and warm welcome, Savita Thaplia. Thank you for being here with us today again to discuss something which is still a taboo, a taboo topic on platforms, though there's so much internal work happening around this by different organizations. And I know it's so close to your heart and so close to what you do. So, Savita, continuing with what we spoke on the last session on the need and significance of sexuality education with children having special needs or not, the right attitude needs to be developed, regardless of anything. It is your body, so your safety is important. Today, we will speak on the change in attitude towards sexuality education. What is it? So over to you, Savita, if you want to, add into something that I've missed, and then you can start with the questions. Thank you, Kusum. Thank you for the introduction. Great introduction. And uh, let's just carry it forward from our last session. तो आज हम ये चाहेंगे कि हम और भी ज़्यादा पेरेंट्स और पेरेंट्स तक पहुँचें
और हमने यही सोचा कि इस बार जो है हम इस पर फोकस करें कि इस एटीट्यूड को हम कैसे बनाएं, इस नज़रिए को कैसे बदलें, इस दृष्टिकोण को हम अपने में कैसे बदलाव लाएं। क्योंकि एक ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसा हम वर्ड यूज़ करते हैं टैबू या एक झिझक है इस सब्जेक्ट में, तो पेरेंट्स को भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि अभी ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है और आम रोज़मर्रा में भी हम लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। तो मैं यही इस सेशन में जोर देना चाहूँगी कि अगर हमारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, जो कि और जो गार्जियन जो हैं, वही एक प्राइमरी सेक्सुअल हेल्थ एजुकेटर्स हैं एक्चुअली, अगर हम देखें तो। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप को ही देखता है सबसे पहले, और उनके साथ में ही उसकी शुरू की ज़िंदगी चलती है। तो वो सबसे बड़े एजुकेटर्स हैं। अगर वो अपने इस झिझक से हट जाएं और इस के बारे में सोचें, क्योंकि वो और चीज़ें तो बच्चों को सिखाते ही हैं, क्या क्या सही है, क्या गलत है, कैसे अपने को साफ रखें, कैसे नहाना धोना रोज़ का ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, और किस तरह से उनको बच्चों को सेफ रखते हैं। तो जब बाकी सब हम बातें करते हैं उनके साथ में शुरू के कुछ साल तक, जब तक वो स्कूल नहीं जाता है, तो हम इस विषय में भी सोचें और अपने हम इस दृष्टिकोण को बदलें। और ख़ास तौर पे आज के ज़माने में, अभी आपने पीछे सुना होगा कि 8-9 साल का बच्चा, अभी बच्चा ही है हमारे लिए, लेकिन उसने रेप का अटेम्प्ट किया। और 13-14 साल के तो कई जो हमारे किशोर बच्चे हैं, वो कई किस्से हमने सुन चुके हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है कि उनको हम सेक्सुअल जो यौन शोषण उनके साथ होता है या इस तरह की बलात्कार की कोशिशें की जाती हैं, उससे हम कैसे बचाएं। और उनको हम, जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे उनके साथ में, इससे हम इस टैबू को जो है, इस अपनी जो एक धारणा बनाई हुई है कि इसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, उसमें के बारे में थोड़ा सोचें। और इसके लिए अगर वो चाहे तो वो अपने साथ में और जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करें, आपस में कभी एक दूसरे के साथ में बैठ के बात करें कि ये सब हो रहा है और हमारे बच्चे शायद ज़्यादा इसमें इसके लिए रिस्क उनका ज़्यादा है क्योंकि उनकी विकलांगता की वजह से। और वैसे तो हर बच्चे के लिए जो है रिस्क है। मैं तो मेन स्ट्रीम स्कूल के बच्चे, टीचर्स या पेरेंट्स, सबको मैं ये कहूँगी कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इसको बहुत लाइट ना लें, इसके बारे में सोचें और इसके बारे में कुछ करें। इवन जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जिनको कोई विकलांगता नहीं है, उनके लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है, उनको भी सिखाना, उनको भी ट्रेन करना। और जैसे हमने पिछली बार कहा कि 6 से 8 टाइम्स ज़्यादा इन हमारे विकलांग बच्चों को जो है रिस्क है इस चीज़ का, और उनके साथ में जो है उनकी अपनी और मुश्किलों की वजह से उनके लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है। और फिर इसके बारे में वो बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जाके पढ़ें इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, बहुत कुछ काम हो रहा है। बाहर के देशों में तो उस स्तर में नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, लेकिन काम काफ़ी हो रहा है। और हमारे देश में भी कई संस्थाएं हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सब्जेक्ट को एड्रेस कर रही हैं। तो एक तो ये इस चीज़ को देखें, कई वीडियोस हैं, ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियोस हैं, अच्छे जो लिटरेचर है उसको पढ़ें इसके बारे में। और एक नॉलेज अच्छे लें, साइंटिफिक नॉलेज लें इसके बारे में कि इसको अगर हम समझेंगे और इससे हम अपने बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा। अगर हम उनको अच्छी हेल्दी एटीट्यूड के साथ हम इस सब्जेक्ट को लेंगे तो इसका असर बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। उससे बच्चे ज़्यादा एक सुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षित के साथ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। उनको जो एक इमोशनल कई प्रॉब्लम्स उनके साथ में एक बढ़ती उम्र के साथ होती है, उस सबको वो कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी मैं सोचती हूँ कि इसलिए हमारे को सबको इस चीज़ के जो एक अपना हमारा नज़रिया है उसको बदलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए और हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए इसके बारे में। बहुत अच्छे से समझाया सविता आपने। बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना नज़रिया बदलें, जैसे हम माइंडसेट की बात करते हैं। तो
Thank you, Savita. Comprehensive sexuality education, जो है, CSC. So it has come to be seen as a way of tackling not only issues of sexual health, but fundamental societal difficulties too. So there is a need for such education globally, not only in our country, but globally. So it needs a lot more work in situations where, gender inequality is high and adolescent sexuality is considered actually a cultural taboo. So हम आगे बढ़ते हैं. How do we give a safe environment to a child for physical and emotional development? I would relate this to social competence as well. So how do we give that safe environment to children? जब हम इसकी सेफ्टी की बात करते हैं, हम बच्चा जब होता है तब से जैसे ही बड़ा होता है तो हम कल सेफ्टी की बात करते हैं. वो किस सेंस में करते हैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए, उसके आगे हम कोई बिजली का सामान ना रखें, गर्म पानी ना छोड़ दें, या थोड़ा बच्चा बड़ा होता है साइकिल चलाता है तो कहीं सड़क में गिर ना जाए, उसको हेलमेट पहनाओ, या और थोड़ा बड़ा होता है तुम गाड़ी चला रहे हो तो हम उसकी फिजिकल सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं. लेकिन अब जब सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उनके बॉडीली चेंजेस जो हो रहे हैं, जो उनकी बॉडी में जो बढ़ते हुए बच्चे के जो चेंजेस आ रहे हैं, हम उसकी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन चेंजेस के आने के साथ में उसकी वो जो दूसरी जरूरत है उसकी सेफ्टी की भी हमको बहुत जरूरत है. तो जब हम उनके शरीर का बाहर से ध्यान रख रहे हैं तो हम उनके अंदर से भी उसका ध्यान रखें. और उसके लिए जैसे हम उसको हाइजीन की बात करें, जब हम सफाई की बात करते हैं हम बोलते हैं अपने दांत साफ करो, अपने बालों को धो, अपने को पूरे धो, तो हम उसको रोज जो है नहाना जरूरी है. तो उसी तरह हम उसको ये भी सिखाएं कि आपके जो शरीर के दूसरे अंग हैं उनको भी साफ रखना जरूरी है. और उसमें जब शुरू से आप खुलकर बात करेंगे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो झिझक अपने आप खुलती जाएगी. अगर किसी भी भाषा में जिस भाषा को बच्चा समझता है उसके लिए कोई आपको टेक्निकल बातें नहीं करनी है. जो बच्चा हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो जिस भी भाषा में जिस भी तरीके से समझता है हम उसको समझाएंगे. जब उस काम को हम कर रहे हैं उसी टाइम हम मैसेज देते रहें, प्यार से देते रहें, ये नहीं कि उस पर डांट डपट करें. हम उसको ऐसा विश्वास एक जगाएं उस पर कि आप हमसे कोई भी बात कर सकते हो, आप डरे नहीं, ये चीज नॉर्मल है. नॉर्मल तरीके से करेंगे तो वो नॉर्मल तरीके से ही जवाब आपको देना शुरू कर देंगे. लेकिन आप हमेशा ये सोचेंगे इसको कोई आ गया बंद रखो, ये बहुत ऐसी चीज है जिसमें कि तुम बात ही नहीं कर सकते हो और ये गंदी बात है. एक ये वर्ड बहुत यूज होता है, ये गंदी चीज है, ये गंदी बात है. तो वो कॉन्सेप्ट जब अंदर दिमाग में बच्चों के बैठ जाता है छोटे से, तो कोई भी वो ऐसी चीज देखते हैं, अगर वो किसी हीरोइन को देख रहे हैं वो बिकनी पहन के है तो ओ शेम शेम, गंदी बात है. तो वो इस तरह से बढ़ते हैं, अपनी जो जो उनका डेवलपमेंट होता है वो इसी एक नजरिए के साथ होता चलता है. तो उनको कोई भी चीज ऐसी दिखती है वो सोचते हैं ये गंदी बात है, और ये ऐसी चीज है कि बहुत प्राइवेट है और इसको हम चुपके चुपके से देखें ये तो शर्म की बात है. और इसी तरह से जब वो बढ़ते चलते हैं आगे बच्चे, और जब उनके शारीरिक जब उनकी एक वो सेक्सुअल नीड जरूरत जब उनकी होती है तो वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि सही नहीं होती. हमेशा जो नॉलेज है उसको एक सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है और उसका फिर गलत तरीके से इस्तेमाल होता है. हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस एज दिस. तो किसी भी सीखने के लिए हमारे जो है एजुकेशन को अगर देखें तो उसके एक 3 मेन जो डोमेन्स होते हैं, जो 3 जो जरूरी चीज होती है. एक होता है कॉग्निटिव जो कि सारे एजुकेटर्स जानते हैं, और उसके लिए क्या है कि उसमें हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, उसको हम अपने दिमाग में रख के इस्तेमाल करें. तो वो राइट काइंड ऑफ नॉलेज नहीं आएगी तो उसका इस्तेमाल भी राइट नहीं होगा. उसके बाद में हमारे आता है इफेक्टिव, जिसमें फीलिंग्स आती हैं, एटीट्यूड आते हैं, हम क्या वैल्यूज लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा को क्या क्या हमने देखा है बचपन से, क्या सीखा है हमने. तो वो फीलिंग्स है जो एक उस पर ध्यान दिया जाता है जब भी हम बच्चों को कुछ भी चीज सिखाते हैं. और उसके बाद बिहेवियर. अब जब ये 2 चीज आ गई, कैसे इंफॉर्मेशन ली, कैसे नॉलेज ली, उसके बाद हमारे अपनी किसी भी चीज के लिए क्या वैल्यूज है, क्या हमारा एटीट्यूड है, उस वही चीजें हमारे बिहेवियर में दिखती है. तो तीसरा उसका जो है बिहेवियरल जो एक डोमेन है. तो उसको जब तुम कैसे यूज कर रहे हो, तो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत आप कैसे कर रहे हो, अपने बिहेवियर में आप कैसे ला रहे हो, कैसे आपके डिसीजन हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आती है.
आप निर्णय कैसे ले रहे हो, जब वो चीज कैसी नॉलेज आई और कैसे तुम्हारी वैल्यूज फीलिंग्स आई, और उसके बाद में बिहेवियर आ जाता है। और फिर सेक्सुअलिटी में क्या है, जैसे हमने कहा कि फिजियोलॉजी, अगर हम उनके शरीर के अंगों के बारे में, आँख के बारे में पढ़ते हैं, आँख ऐसे बनती है, आँख ऐसे काम करती है, कान ऐसे होता है, कान से हम सुनते कैसे हैं, उसी तरह से जैसे जैसे एज अप्रोप्रिएट नॉलेज देना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको कुछ भी नॉलेज कभी भी दे दोगे, एज अप्रोप्रिएट, जैसे जैसे उनकी उम्र के हिसाब से जो उनकी जरूरत है आप उनको नॉलेज दे सकते हैं। और उसके अलावा उसमें आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग के बारे में कर रहे हैं। मैं अपने ही अपना एग्जांपल दूं तो मेरा बेटा जो है वो काफी शरीफ माना जाता है। तो जब वो 8th क्लास में आया तो एक दिन मैंने एकदम देखा उसका हेयर स्टाइल बदला हुआ, बाल खड़े करके अपने आया, तो जेल लगाया हुआ। हाँ Yeah. स्टाइल करके, तो यू वोंट बिलीव, मुझे शायद जानकारी थी, शायद मेरे को ये वैल्यूज और ये एटीट्यूड मेरा जो था सही था, तो मैंने उस पर कोई कोई कमेंट नहीं किया, और आई जस्ट सेड कि यू आर लुकिंग वेरी कूल, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। Dude. और और उसको उस समय में ये कहना कि ये सब क्या कर लिया है, वो सुनने वाले उस समय नहीं सुनेंगे, उनको कुछ साल हमको देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चे जो है, ग्रूमिंग जो है एक बहुत जरूरी है, सेक्सुअलिटी में ये भी आता है। फिर हम मैरिज की बात आती है, फिर फीलिंग्स की बात आती है कि बड़े होते जा रहे हैं तो उनको, और इसी पर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, शायद वो पेरेंट्स को हेल्प करेगा, कि हमारा एक स्टूडेंट था डाउन सिंड्रोम के साथ में। जनरली आप देखेंगे कि जो बच्चे हमारे जो हैं विद मेंटल हैंडीकैप होते हैं, वो नॉट, आई डोंट वांट टू जनरलाइज, ये नहीं सोचना कि सारे, क्योंकि उनमें भी अपना अलग होता है, पर जो लोग ज्यादातर हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं बहुत सोशल होते हैं, उनको सबसे मिलना जुलना और ये सब अच्छा लगता है उनको। तो हमारा एक स्टूडेंट था, तो जैसे ही उसके 16-17 साल का हो, उसके बड़े भाई की शादी तय हुई, और उसने घर में हंगामा कर दिया, मेरी को भी शादी करनी है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। तो पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए, बहुत जिद्दी टाइप का, उम्र उसकी ऐसी थी थोड़ा। फिर वो हमारे पास आए, तो हमारे साथ में उन्होंने बातचीत की, फिर हमने थोड़ा पेरेंट्स को काउंसलिंग की। हमने कहा उससे जो है, बोले नहीं हर चीज की जिद करता है, आजकल साइकिल चलाने की जिद कर रहा है, आजकल इसकी जिद कर रहा है। हमने बोला अच्छा ठीक है, हम उसको काउंसिल कर सकते हैं, वो इतना बड़ा हो गया। तो फिर हम उसके साथ बैठे, एक ये छोटी सी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको दे रही हूँ कि हम उसके साथ बैठे, हमने बोला अच्छा ठीक है, आप शादी करना चाहते हैं, और तो ठीक है, गलत बात नहीं है, आप कितने साल के हैं, तो बोला मैं इतने साल का हूँ। तो बोले कि अच्छा भैया की शादी है, तो हमने बोला भैया क्या करता है, काम करता है, कहाँ काम करता है, यहाँ काम करता है। तो हमने कहा फिर वो क्यों काम करता है, बोला वो वहां से पैसे मिलते हैं उसको। तो हमने कहा अब वो बहुत अच्छा पॉइंट था उसको पकड़ने के लिए, तो पैसे तो चाहिए, शादी हो रही है तो पैसा भी चाहिए, परिवार को कैसे संभालेंगे। तो हमने बोला अभी आप शादी करोगे, आपके पास पैसे हैं, बोले नहीं। तो बोले कि फिर कैसे होगा, कैसे पैसे कमाओगे तुम, कि मैं भी काम करूंगा। तो हमने बोला काम करने के लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, काम सीखना भी तो पड़ेगा ना। तो ऐसे करके हमने उसको जिस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि एक सेशन में उसको सब समझ आ गया, क्योंकि टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली हमने उसका मुंह से ही निकलवाया कि हाँ अभी मैं रुकूंगा और मैं शादी तभी करूंगा जब मैं कमाने लग जाऊंगा अपने पैरों पे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम अपने बच्चों के साथ यूज करते हैं, लेकिन ये तब कब करेंगे जब तक वो हम उनके साथ में खुलकर बातचीत नहीं करेंगे। That's the power of communication as well, right? एग्जैक्टली। एक और भी हम लोग को, और भी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जो कि हम लोगों को नॉलेज मिल रही है, तो अभी आजकल सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो रही है कि हमारे होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी चर्चाएं चल रही है, और ये एक प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड होमोसेक्सुअलिटी। तो कभी कभी जो बच्चे हमारे विकलांग उसमें होते हैं, उनमें भी होमोसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। तो वो सब बातें हम कब करेंगे, जब तक हम उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो उनकी सेफ्टी, उनकी इन सब बातों के लिए हमें सेफ्टी देखना है। कभी कभी हम लोग, हमने खुद देखा है कि हम अपने रेस्टोरेंट वगैरह में लेके गए हैं कभी उनकी सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो लोग बहुत उनको स्टेयर करते हैं, देखते हैं, तरीके से देखते हैं। हाँ, सही बात। और उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, तो एग्जैक्टली हमें करवाना है। बिल्कुल।
तो उनको एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमको देना जरूरी है कि अगर हम थोड़े अलग भी दिखते हैं तो सभी अलग हैं, हम भी सब अलग दिखते हैं। अगर हम कुछ अलग से कपड़े पहन के जाते हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, तब भी लोग हमें देखते हैं। अगर कोई देख रहा है तो देखने से कोई फर्क नहीं, हमें अपना पर्सनालिटी को वैसा ही रखना है। तो Very इस good point. Yes, Savita. Very nice. Yeah. तो It's दिस इज really, yeah, it's really nice where you're speaking about the physical and, health and safety, because children need to be cared for in a way that encourages the ability, to thrive and guarantees the protection, not only physically from injury, but physical and even sexual abuse. And where yes, the emotional and behavioral competence is concerned, children need to care, or we need to care, for children, that promotes their emotional health, well-being, and that supports their overall mental health. So, leading to what we are talking about is social competence. So, children who possess these basic social competencies are able to develop and maintain positive relationships with peers and adults, and that's what, आप लोग जो कर रहे हैं, जो पहल है, जिस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, I think these are so simple, very very simple, but yes. so profound. So it's teaching relevant topics, right? Example, private public relationships, communication, knowing body, puberty, exploration, abuse, बहुत कुछ है जो आप इस पे, you yourself as an expert can add on this. So how do you build these strategies, and I would call them skills here? How do we go ahead with that? हाँ, इसके लिए भी एक करिकुलम तैयार करना पड़ता है। हमको देखना पड़ेगा कि किस एज के क्या उसकी डिफ़िकल्टी है, स्पेशली जब हम बच्चे जो जिनके साथ में डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं, तो उनका एक जैसे आईपीज़ हम बनाते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो बनता है, उसी तरह से हम इसका भी उसमें ही इसको जोड़ देते हैं। जैसे तुमने अभी बोला कि प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट देना, या कम्युनिकेशन के बारे में बात करना, या रिलेशनशिप के बारे में बात करना, या उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, या प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे करें, वो करना, या उनकी बॉडी के बारे में जो है किस तरह से फंक्शन करती है, उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब के बारे में उनके एज और उनके लेवल के हिसाब से हम उनको बांट देते हैं। जो फुल्ली डिपेंडेंट है उनको कहाँ तक हमको नॉलेज देनी है वो हम देते हैं, बिकॉज जब तुम एक एक केस देखते हो तो तुम्हें उनकी लाइफ के बारे में मालूम होता है कि कैसी इनकी लाइफ है, तो उसके हिसाब से बनाते हैं। एंड एज आई सेड, वी डोंट अननेसेसरी ओपन विंडोज फॉर एवरीवन। So we should not miss out on any opportunity to be talking about these things. So, it's not that you have, like how you do, it's not a training session, but then, you're just picking up from what's happening in the environment and then you're talking to them. That's really nice. एग्जैक्टली। और कभी ऐसा हो सकता है कि हमको उनको अलग से भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं एक कॉन्सेप्ट लूँ प्राइवेट एंड पब्लिक का, अब हाउ टू टीच व्हाट इज प्राइवेट, व्हाट इज पब्लिक, especially a child with mental handicap, चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट, उसको कैसे सिखाएं। तो हम उनके लिए हमको काफ़ी शुरू से जो है बड़ी बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे क्लास में बच्चे हैं बैठे हुए, तो हम एक बच्चे को अलग कर देंगे, बोलेंगे जो प्राइवेट का मतलब वन, ओनली वन, खाली हम अकेले हैं, और उधर हम दूसरी तरफ 4-5 बच्चे कर देंगे, हम बोलेंगे ये पब्लिक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा है वो पब्लिक है, और ये प्राइवेट है ये पब्लिक है। यानी यहाँ पे अकेले में तुम कई काम कर सकते हो जो तुम पब्लिक में नहीं कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल से, या फिर ग्रुप में हम उनको पूछ सकते हैं कि आपने सुबह से घर से चले थे तो क्या क्या किया सुबह, तो वो बच्चे बोलेंगे हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, धीरे धीरे बोलेंगे, चाहे 2 दिन की क्लास हो चाहे 4 दिन की क्लास में, वो पूरा उनके धीरे धीरे हम चलेंगे। और फिर हम टॉयलेट गए, फिर हमने कपड़े बदले, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने बैग लगाए, जो भी सीक्वेंस है वो बताएंगे। फिर हम उन्हीं से पूछेंगे, अच्छा इसमें से कौन सा काम था जो प्राइवेट था, कौन सा था जो तुमने सबके साथ में किया। तो वो कॉन्सेप्ट देना कि हाँ कई काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्राइवेट में अकेले में होते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो पब्लिक में होते हैं, और उन्हीं से ही निकलवाया तो उनको समझ भी ज्यादा आएगा। और धीरे धीरे उनके जो है दिमाग में जब ये बैठ जाए कि ये चीजें हमें पब्लिक में बिल्कुल नहीं करनी, तो अपने आप से ही उनको समझ आ जाएगी कि क्या प्राइवेट है। और इस तरह के कपड़ों के बारे में
हम कटिंग्स ले सकते हैं अखबारों से या हम मैगजीन से, प्राइवेट कपड़े और पब्लिक कपड़े, तो उसमें तुम्हें अंडरवेयर, ब्रा, पैंटीज के जो मिले वो सब फिर उनको सॉर्टिंग के लिए दे सकते हैं। इसमें से कौन से प्राइवेट है, कौन से हम सबके सामने, यू नो, लाइक दिस स्मॉल थिंग्स लाइक वी कैन यू नो अप एंड टीच देम। और इसी तरह से एक रिलेशनशिप की हम बात करें कि अपना अगर हम देखें कि उसको जो है अपना ही अपने अपने को वो खुद कितना प्यार करता है, उसकी अपनी जो है एक बॉडी को वो कितना प्यार करता है, क्योंकि जब वो बाहर जाता है सब देखते हैं, एक उसको हीन भावना हो सकती है, और जब किसी को भी हीन भावना होती है तो वो लॉन्ग रन में नुकसान करती है, कई चीजों को सीखने से रोक देती है, रुक जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, बिल्कुल। और उसको कितना अपना जो एक सेल्फ एस्टीम उसकी जो है वो नीचे जाती है, उसका आत्मसम्मान में कितनी ठेस पहुंचती है, उसका अपना एक जो मनोबल होता है उसको हम बहुत ठेस पहुंचते हैं। हमें क्या करना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम, आई थिंक एक सेल्फ एक्सेप्टेंस या सेल्फ अवेयरनेस, तो ये सारी चीजें अगर हम सबके सामने लाएं तो आई थिंक ये बहुत बहुत सबको हेल्प करेगा। जो तुमने शुरुआत की है, अरे कि हम एक ये शुरुआत है कि बस इसको कम से कम एक्सेप्ट करें कि ये हमारा टॉपिक जो है, इसके ऊपर हमको काम करें, तो जितने भी अपने क्राइम्स जो हो रहे हैं शायद थोड़ा सा उस पर असर पड़े, मालूम नहीं है कि कब पड़ेगा असर, लेकिन पड़ सकता है अगर पेरेंट्स। एक शुरुआत तो है, तो दिस इज व्हाट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक शुरुआत है,